Hello students, welcome back to online video classes. Okay, dear students, in previous video we started our second number lesson from an alien hand or the supplementary reader. Yes, we started the lesson, the name of lesson is bringing up curry. Okay, and few passages, paragraph from this lesson we already discussed. Okay, what we learned in previous video and what we discussed about that narrator of this lesson bringing up curry who heard the voice of that curry. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि करी की आवाज वो कहां से तो आवाज आती है और वो नरेटर जो है वो आवाज सुनता है और वो डर जाता है कि करी को किसी ने मारा तो नहीं होगा, तो वो भागकर आता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, सभी जगह पर देखता है और he said, I looked all over but I could not find him. That narrator didn't found that curry. Then I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. And then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drawing. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. And then narrator went to the near of the edge of the water or the river के पास गया narrator, and then he saw the black something, उसे काले कलर का कुछ तो दिखाई दिया, वो पानी में क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को बचाने की, झटपटाने की कोशिश वहां पर वो पानी की सरफेस पर कर रहा था. तो उसके बाद उसने देखा कि एक कुछ चीज है, वो क्या थी, वो चीज थी एलिफेंट की ट्रंक. इट वाज द ट्रंक ऑफ एलिफेंट. एंड देन नरेटर थॉट अबाउट that curry or the elephant was drowning in that river. उसे ऐसा लग रहा था कि पानी में वो अब क्या होगा, डूब जाएगा, उसका करी पानी में डूब जाएगा. That narrator was helpless. Why? Because he thought that I could not jump in the water. Why? Because the weight of that elephant was very much, because of how 400 pounds of the weight of that curry. कितना वेट था, 400 पाउंड तक उसका वेट था और उसे पानी से बाहर निकालना उसे आसान काम नहीं था. इतनी बड़ी चीज को उठाना और उसे बाहर लेकर आना वो उसके बस की बात नहीं थी. Then but I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye he began to trumpet and struggle up the shore. और उसने देखा और करी ने भी उसे देख लिया, नरेटर को देख लिया और वो और जोर से ट्रम्पेट मतलब आवाज करने लगा, स्ट्रगल उसका स्टार्ट हो गया और वो शोर की तरफ मतलब किनारे की तरफ जो वहां पर जो क्या सैंड है उस तरफ वो आने की कोशिश कर रहा था. Then still trumpeting he pushed me into the water and as I fell into the stream I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और वो जैसे ही बाहर आया तो उसने क्या किया, नरेटर को अंदर धकेल दिया. क्यों धकेल दिया, तो वहां पर एक जो छोटा सा बच्चा था, एक लड़का था, वो पानी के सरफेस पर रिवर पर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा वहां पर गिरा हुआ था, पानी में डूब रहा था. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. वो क्या सोच रहा था नरेटर, करी क्या सोच रहा था कि वो बच्चे को लेकर वो नरेटर से बाहर लेकर आए और वो वही काम कर रहा था. और वो जो करी उस रिवर के पास वहां पर वो खड़ा था और उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer. Okay, that narrator was not good swimmer. वो एक अच्छा स्विमर नहीं था. फिर भी उसने क्या किया, उस बच्चे को बचाने की कोशिश वो कर रहा था, डूबने से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बॉडी खींचने की कोशिश कर रहा था पानी से बाहर. I could not swim ashore and slow current was already dragging me down. वो अच्छी तरह से स्विम नहीं कर रहा था, वो अच्छा स्विमर नहीं था. उस वजह से वो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जो पानी का जो दबाव है वो उस
उसे पानी में खींच रहा था, पानी में खींच रहा था मतलब वो डूब रहा था, वो भी नरेटर भी पानी में डूब रहा था, उसे पानी खींच रहा था नीचे। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again. Okay, when that Curry saw them, both of them, दोनों बच्चों को, मतलब नरेटर पर और दूसरा जो बच्चा है उसे डूबते हुए देखा, तो वो एक्चुअली वो बहुत स्लो है, हमें पता है वो जो हाथी है वो बहुत स्लो होते हैं, वो भी स्लो ही था। लेकिन जैसे उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, डूब रहे, दोनों भी डूब रहे, तो उसने क्या किया, जल्दी से हॉक की तरह, मतलब हॉक बहुत जल्दी उड़ता है, उसके जो शिकार होता है, प्रे होता है, उसे जल्दी से पकड़ लेता है, उसी तरह वो उसे मतलब उसे निकालने की कोशिश वहां पर कर रहा था। एंड उसने क्या किया, अपनी जो ट्रंक है उसे आगे किया और उसे उसके साथ साथ दोनों बच्चों को खींचने की कोशिश कर रहा था। I raised up my hand to catch it and slipped. मैंने मेरा हाथ वहां पर, वो हाथ से उस ट्रंक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से, मेरा हाथ जो है वहां से क्या हो गया, स्लिप हो गया, ऐसा नरेटर कर रहा है। Then I found myself going under the water again, but, और वो अपने आप को क्या कह रहा, मतलब क्या सोच रहा था कि मैं अब यहाँ पर डूबने ही वाला हूँ। This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. Okay, both the Curry and narrator wanted to save that boy's life. Okay, they do whatever the struggle they can do, मतलब बहुत सारी चीजें वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश में कर रहे थे। वो जो बच्चा डूब रहा था वो उसे नदी के किनारे लेकर आना चाहते थे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जो नरेटर वाज नॉट अ गुड स्विमर, वो अच्छा स्विमर नहीं था, उस वजह से उसे उस बच्चे को लेकर भी आना, खुद ही अच्छा स्विमर नहीं तो खुद अपनी जान बचाएगा कि उस बच्चे की जान बचाएगा, इस तरह के माहौल में वो क्या कर रहे थे, दोनों उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और बाद में जब नरेटर वहां पर गया, अंदर गया, उस बच्चे को पकड़कर उसे लेकर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी पानी की दबाव की वजह से, पानी के करंट की वजह से वो क्या हो रहा था, नरेटर पानी में डूब रहा था। और फिर करी क्या करता है, उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, उसे अपनी ट्रंक देता है, लेकिन वो हाथ से उसके फिसल जाती है। और जैसे ही वो फिर से डूबने की मतलब डूब रहा था, वो नरेटर डूब रहा था, तो वो क्या सोचता है कि वो जमीन मतलब वो पानी के नीचे जो जमीन है उसका जो सरफेस है, नीचे का सरफेस बेड, वहां पर नीचे से जल्दी से नीचे जाता है, वो डायरेक्टली टच होकर फिर से ऊपर आता है। सडनली वेरी क्विकली kicked the river bed and so shot upward like an arrow की तरह जल्दी से वो ऊपर आ गया। और उसके बाद क्या किया, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, और उसके साथ साथ उसने उस बच्चे का हाथ भी पकड़ा हुआ था, उसे भी छोड़ा नहीं था। And as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened, I felt a lasso around my neck. जैसे ही वो बच्चे के साथ पानी के ऊपर आया, तो उसने अपने बॉडी पर, मतलब अपने नेक के आसपास कुछ चीज महसूस की। वो चीज क्या थी, तो वो थी एलिफेंट की ट्रंक। दिस फ्राइटन मी, उससे डर लगा। एक्चुअली वो कुछ चीज अटक जा, अगर पानी में आप डूब रहे हो और आपके गले में कुछ चीज अटक जाती है तो आप क्या हो जाओगे, उस चीज से डरोगे। तो वो नरेटर भी वहां पर क्या हो गया, डर गया। I thought some water animal was going to swallow me, और उसे ऐसा लगा यहाँ पर कोई बड़ा एनिमल है, एक वाटर एनिमल है, वो क्या कर लेगा, मुझे खा लेगा, वो मुझे खा ही लेगा। I thought some water animal was going to swallow me. Then I heard Curry squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. और फिर बाद में उसे महसूस हुआ कि वो जो चीज थी उसके नेक के आसपास, जो सांप की तरह जो चीज थी, उसे पता चला कि हाथी की आवाज आने के बाद, करी की आवाज आने के बाद, कि वो क्या है,
करी की ट्रंक है, हाथी की ट्रंक है, तो वो उसका डर क्या होगा, वहां से भाग गया और वो डरने की वजह वो खुश हो गया क्योंकि वो क्या होने वाले थे, दोनों भी बचने वाले थे। तो हाथी ने क्या किया, करी ने क्या किया, करी पुल्ड बोथ ऑफ देम, मतलब वो क्या कह सकते हैं उसे, नदी के बाहर, पानी के बाहर उन दोनों को उस हाथी ने निकाल दिया। ओके, दिस इज द वन पॉइंट of the lesson. So dear students, something I think 6-7 paragraph we already discussed. Okay, now today we stop here. The homework of this today's video is read whatever we discussed. हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, पढ़ा है, वो एक बार रीडिंग करना है और बाकी जो हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 10 के ऊपर, that topic we will start in next video. So today we stop here. Thank you.